جی سر، آواز آ رہی ہے. تو جب آپ نے یہ فارم ڈیزائن کر لیا ہے، یہ ویژول اسٹوڈیو میں کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں آپ نے ڈیفائن کر دیا فارم کو، ان پٹ کنٹرول کو کر دیا، تو اس کی جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ اس طرح آئے گی. آپ کے پاس یہ فائل سلیکشن کے لیے کنٹرول آ جائے گا، اور یہ نیچے جو بٹن آپ نے اسپیسیفائی کیا تھا چوز فائل، تو جو فائل بھی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر اپلوڈ کر سکتے ہیں. جب آپ اپلوڈ کے بٹن پہ پریس کریں گے تو اس کے بعد جو پی ایچ پی اسکرپٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا، اور پی ایچ پی جو اسکرپٹ ہے اس کے ذریعے باقی آپ کی جو فائل ہینڈلنگ ہے وہ ساری پی ایچ پی اسکرپٹ کے ذریعے ہوگی. جب ایک فائل اپلوڈ ہوتی ہے تو یہ ایک ٹیمپریری ایریا جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا پی ایچ پی ڈاٹ آئی این آئی میں، وہاں پہ جو بھی ٹیمپریری ایریا ہے وہاں پہ سٹور ہو جاتی ہے. اب جب سیکنڈ فائل آپ اپلوڈ کریں گے تو اگر آپ وہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ ڈسٹرائے ہوگا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو فائلز کا سپر گلوبل ایرے ہے وہ فل اپ ہو جاتا ہے. جب بھی آپ اس میں نئی فائل اپلوڈ کریں گے تو جو پریویس فائل ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی، ڈسکارڈ ہو جائے گی. تو یہ ضروری ہے کہ اس فائل کو ہم کہیں اور موو کریں. تو فائل اپلوڈ کرنے کے لیے ڈفرینٹ سپر گلوبل ایریز یوز ہوتے ہیں. تو ان کی ہم پہلے ڈسکرپشن دیکھتے ہیں، پھر ہم ایک کوڈ کو دیکھیں گے جس کے ذریعے ہم فائل کو ٹیمپریری پاتھ سے کسی اور پاتھ پہ موو کر سکتے ہیں. تو اس میں ڈالر انڈرسکور فائلز اے فائل، اے جو ہم نے فائل رکھی ہے دیٹ از نیم، یہ کیا ہوگا اوریجنل نیم آف دا فائل بیفور اٹ واز اپلوڈڈ. تو اپلوڈڈ ہونے سے پہلے جو نام تھا وہ اس میں اس ڈائریکٹیو کے ذریعے اس سپر گلوبل ایرے میں سٹور ہوگا. پھر ڈالر انڈرسکور فائل ٹائپ ہے، دس از دا مائم ٹائپ آف دی ٹیکسٹ جو کہ براؤزر پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کی فائل کی ٹائپ کیا ہے. تو پھر فائل سائز کے لیے کہ جو فائل کا سائز ہے ان بائٹس وہ اس میں سٹور ہوگا. ٹیمپ نیم از دی لوکیشن آف ٹیمپریری فائل آن سرور، جو ٹیمپریری پاتھ سرور کے اوپر سیٹ ہوا ہے وہ فائلز اے فائل میں سٹور ہوگا. اور کوئی بھی ایرر اکر ہوتا ہے فائل اپلوڈ کرنے میں تو اس کو ہم ایرر کے جو سپر گلوبل ایرے سے دیکھ سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، از اپلوڈڈ فائل function as an alternative to the isSet and empty function. isSet ہم جو باقی کنٹرولز ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ فیلڈ میں ویلیو جو ہے وہ سیٹ ہے یا نہیں ہے، ریڈیو بٹن جو ہے وہ چیکڈ ہے یا نہیں ہے. تو ان فنکشنز کی بجائے اس میں ہم یوز کریں گے is underscore uploaded underscore file and it will tell us that file has been already uploaded or not. تو یہ فائل کو اپلوڈ کرنے کا اسکرپٹ ہے. if is uploaded file، یہ فائل کا نیم ہے. ٹیمپ نیم جو آپ کا ٹیمپریری پاتھ ہے، اور جو ایرر ہے دے آر 0، دین
मैसेज डिस्प्ले होगा द फाइल वाज अपलोडेड सक्सेसफुली but has not been saved. Why it has not been saved? Because it is in temporary folder. The file is temporarily stored और ये temp name जो आपका वो temporary path server पे set है उसको डिस्प्ले कर देगा. The file name was, अगर आपने फाइल का नेम चेक करना है तो ये जो फाइल $_ सुपर ग्लोबल, इसके ज़रिए आप फाइल नेम चेक कर सकते हैं, फाइल टाइप चेक कर सकते हैं, या फाइल का जो साइज़ है उसको भी चेक कर सकते हैं. अगर फाइल अपलोड होगी है तो ठीक है, ये मैसेजेस आएंगे. अगर ये मैसेजेस नहीं आते, इट मीन्स योर फाइल इज़ नॉट अपलोडेड. कोई ना कोई एरर आया है, टेम्परेरी जो पाथ है उस पर फाइल अपलोड नहीं हुई, तो फिर मैसेज आएगा द फाइल वाज नॉट अपलोडेड सक्सेसफुली. और जो एरर कोड होगा इस सुपर ग्लोबल एरे से हम उसको डिस्प्ले करा लें. तो ये एक सिंपल स्क्रिप्ट है जिसके ज़रिए हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं. The next step, applying restriction of file upload. For example, फाइल टाइप या साइज के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है, या फिर आप चेक करना चाह रहे हैं कि जो पहली फाइल जो है वो अपलोडेड है, तो फिर उसके लिए आप फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. तो ये स्क्रिप्ट है इफ़ इज़ अपलोडेड फाइल, ए फाइल टेम्प नेम फाइल्स का जो एरर कोड अगर ज़ीरो है, तो फिर आप इसका पाथ सेट करते हैं कि टेम्परेरी पाथ से जो फाइल है आप उसको मूव करना चाह रहे हैं किसी परमानेंट डायरेक्टरी में. तो पाथ इज इक्वल टू टेस्ट अपलोड डॉट $_ तो ये टेस्ट अपलोड जो है ये आपने पाथ सेट कर दिया है, और इसको जो फाइल नेम है वो इसमें आपने एडजस्ट कर दिया है. इफ़ नॉट फाइल एग्जिस्ट पाथ, अब इस पाथ पे अगर फाइल जो है एग्जिस्ट नहीं करती तो ये मैसेज आएगा द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ सेफ टू मूव द टेम्परेरी फाइल. एल्स, अगर ये पाथ पे मूव हो चुकी है फाइल, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज अपलोड अनदर फाइल. तो अगर ये इफ स्टेटमेंट रन नहीं होती, कोई एरर है या आपकी जो फाइल है उसका जो नेम है वो अकॉर्डिंगली नहीं है, तो फिर ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. द फाइल वाज नॉट अपलोडेड सक्सेसफुली, और उसका जो एरर कोड है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा. नेक्स्ट है, फिर हमने इसको मूव अपलोडेड फाइल का फंक्शन यूज़ करना है, ताकि जो हमारी फाइल टेम्परेरी फाइल है इनटू इट्स, तो उसको मूव करें इनटू इट्स परमानेंट लोकेशन. तो परमानेंट लोकेशन पे फाइल को सेव करने के लिए हम ये स्क्रिप्ट रन करेंगे. तो ये पाथ हमने पहले भी सेट किया था, अभी मज़ीद यहाँ पे ये लाइन ऐड करेंगे, टेस्ट अपलोड, और ये जो पाथ है ये एडजस्ट हो चुका है. इफ इफ मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल्स, और ये पाथ इसको आपने जो है वो प्रोवाइड करना है इसके पैरामीटर में, फाइल नेम और पाथ. तो ये क्या होगा कि जो आपकी फाइल है वो परमानेंट पाथ पे मूव हो जाएगी, और साथ में मैसेज आ जाएगा द फाइल वाज अपलोडेड सक्सेसफुली, एल्स द फाइल वाज नॉट अपलोडेड सक्सेसफुली. अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इफ फाइल एग्जिस्ट, अगर ये वाली इफ नॉट फाइल एग्जिस्ट पाथ,
तो फिर ये इफ स्टेटमेंट चलेगी कि उसको हम मूव कर देंगे। अदरवाइज अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज अपलोड अनदर फाइल। अगर ये वाली इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती तो द फाइल वाज नॉट अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे ये एरर कोड डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक सिंपल स्क्रिप्ट है जिसके ज़रिए हम फाइल्स को सर्वर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिट फाइल टाइप। तो सिनेरियोज आते हैं, आप जब वेब एप्लीकेशंस डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, there might be scenarios where you want to limit the file type or limit file size, या इस तरह की कोई और आपने limitations लगानी है तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं। अब ये जो स्क्रिप्ट है इसमें हम यूज़र को सिर्फ अलाउ कर रहे हैं कि वो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या जिफ फाइल्स को अपलोड कर सके। इसके अलावा कोई भी फाइल एक्सटेंशन अगर यूज़ होगी तो उसके अगेंस्ट एरर जनरेट होगा। तो allow certain file formats if image file type not equal to JPG and image file type not equal to PNG and image file not equal to JPEG and image file type is not equal to GIF। तो ये यहाँ पे हमने जितनी भी हमने एक्सटेंशंस को ब्लॉक करना है या जिन एक्सटेंशंस को हमने अलाउ करना है वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम इसकी लॉजिक बना सकते हैं। तो ये अलाउड एक्सटेंशंस हैं जेपीजी, पीएनजी, जेपेग एंड गिफ। इसके अलावा कोई भी एक्सटेंशन होगी तो उसके अगेंस्ट एरर मैसेज जनरेट होगा, सॉरी ओनली जेपीजी, जेपेग, पीएनजी एंड गिफ फाइल्स आर अलाउड, और ये अपलोड ओके को ये ज़ीरो कर देगा। तो इस तरह हम लिमिट कर सकते हैं फाइल टाइप को। फाइल साइज़ को भी लिमिट कर सकते हैं, या हमने कोई और सर्टन इसमें लिमिटेशन लगानी हो वो भी इस पर अप्लाई की जा सकती हैं। तो एक ये सिंपल तरीका था कि सर्वर साइड के ऊपर अगर आपने फाइल्स को अपलोड करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने एक फॉर्म, सबसे पहले तो आपने सेटिंग्स को चेक करना है। आपने जो INI फाइल है उसको लोकेट करना है सर्वर के ऊपर। अगर सर्वर पे वो आपको मिल जाती है तो उसमें सर्टेन पैरामीटर्स हैं उनको चेक करना है, और वो पैरामीटर अगर आपकी रिक्वायर्ड सेटिंग के मुताबिक नहीं है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। INI को लोकेट करने के लिए भी एक स्क्रिप्ट है जो मैंने शुरू में बताया है कि अगर आपको INI फाइल नहीं मिल रही तो वो स्क्रिप्ट रन करें तो आपको INI फाइल मिलेगी, उसको आप ओपन कर लें किसी भी एडिटर में और वैल्यूज़ को एडजस्ट कर लें। वैल्यूज़ को एडजस्ट करने के बाद फिर आप एक फॉर्म डिज़ाइन करें जिसमें फ़ाइल ब्राउज़ करने के लिए कंट्रोल हो, फ़ाइल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल हो। तो फाइल सेलेक्ट करने का जब वो फॉर्म क्रिएट हो जाएगा उसमें आपने PHP फाइल का नेम रखना है एक्शन में, कि जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस हो तो PHP की कौन सी फाइल जो है वो सिलेक्ट हो जो ओपन होगी। तो जैसे यूज़र सेलेक्ट करेगा कोई सर्टन फाइल और अपलोड के बटन पे क्लिक करेगा तो उसके अगेंस्ट एक PHP का स्क्रिप्ट रन होगा जो फाइल को अपलोड करेगा। फाइल किस पाथ पे अपलोड होगी, कौन सी फाइल टाइप होगी, उसका साइज़ क्या होगा, उसका जो टाइम जो होगा अपलोडिंग वो मैक्सिमम टाइम कितना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स कितनी होंगी, ये सारा कुछ आपने PHP में हैंडल करना है। तो इसमें HTML का काम जस्ट सिलेक्शन ऑफ फाइल है। तो जब वो फाइल सेलेक्ट हो जाए तो फिर ये PHP का कोड है जो उसको टेम्परेरी पाथ से परमानेंट पाथ पे स्टोर करेगा।
अब इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं वो एक अपलोड मैक्स फाइल साइज है, कि जो डिफ़ॉल्ट लिमिट है वो कम होती है। और लाइक डिफ़ॉल्ट लिमिट जो पुराने PHP के वर्जन है उसमें 2 MB है। तो अगर आप कोई PHP का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो अगर 2 MB से बड़ी फाइल अपलोड करेंगे तो वहाँ पे एरर आएगा। तो उस एरर को रिमूव करने के लिए आपको ये अपलोड मैक्स फाइल साइज़ को एडजस्ट करना होगा, और साथ में पोस्ट को भी चेक करना होगा कि जो पोस्ट मेथड है उसका भी साइज़ जो है वो 2 MB से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सेटिंग आप कर लेते हैं तो ये जो एक कॉमन प्रॉब्लम आता है अपलोड मैक्स फाइल साइज़ का, ये नहीं आएगा, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्टरी फोल्डर है जहाँ पे आपने फाइल को मूव करना है और उस फोल्डर के ऊपर कोई परमिशंस सेट हैं, लाइक यू आर नॉट अलाउड टू राइट डेटा ऑन दैट डायरेक्टरी, देन यू विल रिसीव एन एरर। तो जब आप सर्वर पे वेबसाइट्स को अपलोड करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो तब ये अमूमन प्रॉब्लम आते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने लोकल सिस्टम के ऊपर लोकल होस्ट के सिनेरियो में इसको कर रहे हैं तो ये इस तरह का इशू नहीं आता। तो अभी आप इसको अपने लोकल होस्ट के ऊपर इसको रन करेंगे और फाइल्स को अपलोड करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो वेब सर्वर है उसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है ताकि PHP आपकी एग्जीक्यूट हो सके।